سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بچہ جب مدرسے میں لگایا جاتا ہے، وہ قرآن کریم پڑھ کے حفظ کرنے کے بعد جب بچہ فارغ ہو جاتا ہے، وہ بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی داڑھی وغیرہ نہیں آتی۔ اب وہ اگر علم دین حاصل کر بھی لیتا ہے، بچہ داڑھی چہرے پہ مبارک پہ نہیں ہے، تو وہ امامت کر سکتا یا نہیں؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے۔ میرے اور میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجئے۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ اگر حافظ ہو یا نہ ہو، بالغ ہے اور امامت کے شرائط پر پورا اترتا ہے تو قدرتی داڑھی نہیں نکلی تو کوئی حرج نہیں ہے، امامت تو وہ کر سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں بلوچستان سے خالد حسین، ضلع صوبت پور سے ہوں۔ بابا جان، میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ سے کوئی کوتاہی کر رہا ہو تو کس طرح سے اسے معافی مانگنا چاہیے؟ جیسے کوتاہی، بعض کوتاہیاں ایسی ہوتی ہے معافی مانگ لیں گے تو ہو جائے گی، بعض کوتاہیاں ایسی ہوتی ہے اس کی تلافی دینی پڑے گی، جو نقصان پہنچا ہے وہ بھی پیمنٹ کرنا پڑے گا۔ اب جیسی غلطی، اب ماں باپ کو راضی رکھنا چاہیے، ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جو پرانے اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے دینی کام کرتے تھے، جیسے اجتماعات میں اسلامی بھائی کو لے کر جانا، مدنی قافلے میں اسلامی بھائی کو لے کر جانا، دیگر دینی کام کرنا وغیرہ، مگر اب وہ دینی کام نہیں کرتے۔ اگر کوئی نیا اسلامی بھائی انہیں کسی دینی کام کرنے کی دعوت پیش کرتا ہے تو وہ اپنی باتیں کرنا شروع کر دیتے کہ ہمارے دور میں ہم لوگ اتنا دینی کام کرتے تھے، مگر آپ جو نئے ذمہ داران بنے ہیں وہ دینی کام نہیں کرتے، صرف دکھاوے کا کام کرتے ہیں، تصاویر وغیرہ لیتے رہتے ہیں اور تنقیدیں کرتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے پیارے بابا جان، ہم ان کو کس طرح دینی کام کرنے کی دعوت دیں، کس طرح ان کو ہفتہ وار اجتماعات میں دوبارہ لے کر آئے، اور اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح دینی کام کی دعوت دیتے رہیں؟ اب ان کو جواب کیا دینا تھا، مطلب اس طرح کے کوئی ہوتا ہے، سب نہیں ہوتے، کسی کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے، ان کو مطلب اونچے خواب ہوتے ہیں کہ مجھے یہ عہدہ ملے، وہ عہدہ ملے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا اور وہ اس کے اہل نہیں ہوتے ہوں گے نگرانی کے۔ حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا، پردہ فرمایا، تو ایک لشکر جو روانہ ہو رہا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اب خلیفہ بن چکے تھے، تو حضرت اسامہ نوجوان تھے اور بڑی عمر کے صحابہ کرام بھی اس لشکر میں شامل تھے، تو یہ بات آئی تھی کہ یہ تو نوجوان ہیں، تو ان کے ماتحت، تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تو پتہ تھا، فرمایا کہ ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر لشکر بنایا ہے، تو جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا لیا، میں اس کو نہیں بدل سکتا۔ اور یوں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی الحمدللہ یہ امارت میں لشکر روانہ ہوا۔ تو یہ جوان یا قدیم جدید
नया पुराना, जरा उम्र वाला बड़ी उम्र वाला कदीम होता है और छोटी उम्र वाला जदीद होता है, नया होता है आमतौर पर। तो इसमें नहीं, बुजुर्गी का मेयार भी ये नहीं है बुजुर्गी बअक्लस न बसाल, बुजुर्गी अक्ल से इल्म से होती है, साल से नहीं होती। बूढ़े होते हैं बेचारे, उनको बात बूढ़े से मिलेंगे कलमा भी नहीं पढ़ना आता होगा, और जवान मिलेंगे आलिम दीन होंगे, ये होता है। तो इसी तरह निगरान या जिम्मेदारान भी सलाहियत के हिसाब से मतलब बनते हैं। अब जो पुराना है इसको बोलो कि डॉक्टर की सीट पे बिठा दो, ये जवान डॉक्टर क्यों बैठा है, ये तो हमारे सामने तो गलियों में खेलता था, डॉक्टर साहब बन गया, ये स्टेथोस्कोप गले से निकालो मैं पहनूंगा। अब बूढ़े को ये कहा जाएगा यार आपको तो मतलब ये क्या दवा का नाम भी लेना नहीं आता, आप कैसे डॉक्टरी कर सकते हैं, ना कोई ऐसा बोलेगा। तो जब वहां नहीं बोलते तो यहाँ भी नहीं बोलना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद हमज़ा तारी हैदराबाद से। प्यारे अमीर सुन्नत, आपकी बारगाह में मेरा ये सवाल है कि तसव्वुफ़ क्या है और तसव्वुफ़ की क्या तारीफ़ है? क्या ये कोई इल्म है, इसे हासिल करना ज़रूरी है? बराए करम इस बारे में रहनुमाई फरमा। तसव्वुफ़ कुरान और हदीस के मुताबिक ही है, और जो कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं होता तो वो तसव्वुफ़ नहीं होता। तो जैसे कि जो तसव्वुफ़ के मुताबिक अमल करता है वो सूफ़ी कहलाता है, और जो ये नकली होता है वो मुतसव्विफ़ उसको कहते हैं, मुतसव्विफ़। जैसे शायर जो वाकई शायरी जानता है वो शायर होता है, और जो नकली होता है वो मुतशाइर कहलाता है, जो उटपटांग कलाम लिखते होते हैं। तो इस तरह मतलब ये कि तसव्वुफ़ ये बहुत आला है और कुरान और हदीस के मुताबिक है जो है, तो वाकई तभी वो तसव्वुफ़ है। तो मुख्तलिफ इसकी तारीफ़ात हैं, जो कई तारीफ़ात हैं, ये अपने अल्लाह वालों की बातें हैं जिन्होंने किताब देखी हो, थोड़ा बहुत पढ़ा भी हो। तो जगह जगह नई सीरत किसी की शुरू होती है तो पहले वो तसव्वुफ़ की एक तारीफ़ डेफिनेशन लिखी होती है। तो बहुत सारी तारीफ़ात हैं, इनमें एक तारीफ़ तो मेरे नक्श है ज़हन में कि खाली हाथ दिल की खुशी का नाम तसव्वुफ़ है। यानी पास फूटी बादाम नहीं, न कुछ भी पैसे नहीं है, लेकिन दिल मुतमईन है, खुश है, ये तसव्वुफ़। हमारे यहाँ तो लाखों करोड़ों भी हो तो हल में मजीद का बोर्ड लगा होता है, और मिले और मिले और मिले, और फिर सूफ़ी साहब भी कहला रहे होते हैं बस। तो कहलाने से नहीं होता, वाकई जो सूफ़ी होगा वो तो उसकी शान ही अलग है। सारे औलिया किराम सूफ़ी होते हैं, वरना आप आजकल तो इतनी सी दाढ़ी होती है, यूँ रुमाल साइड पे रख दिया और गुस्सा आया तो गाली भी निकल गई मुंह से, लोग इनको कहते हैं सूफ़ी साहब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक मुकर्रिर साहब बयान कर रहे थे कि जो शख्स खाने काबे को सिर्फ देखे, कुछ भी ना करे, बैठ जाए और वो देखे, तो उसको 20 नेकियां मिलती हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी रहमत शफ़ीअ उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैतुल हराम का हज करने वालों पर हर रोज़ अल्लाह पाक 120 रहमतें नाजिल फरमाता है। 60 तवाफ करने वालों के लिए और 40 नमाज पढ़ने वालों के लिए और 20 नज़र करने वालों के लिए। ये हदीस पाक तो ये है उनके लिए जो हज करेंगे, हाजियों के लिए मखसूस है। तो रहमतों का जिक्र, नेकियों का यहाँ तज़किरा नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा ये सवाल है कि आप नालिन मुबारक पहनते हैं, इसकी क्या बरकत है और इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे ताकि हम भी पहने। नाले पाक का नक्श है, ये नाले पाक नहीं है, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जो जूती शरीफ, चप्पल शरीफ, तो इसकी ये मतलब एक नक्श बनाकर ये इस्तेमाल किया जाता है, और ये बुज़ुर्गों से साबित है और बड़ा इसका एहतराम किया जाता है और किया जाता रहा है सदियों से। इसकी बरकतें हैं, इस
मुसीबतें टलती हैं और दुआ कबूल होती है अगर नाले पाक जैसे इसके तबस्सुल से वसीले से दुआ मांगे तो ये कबूल होने के भी वाक़यात हैं। दर्द की जगह रख दें तो दर्द दूर करने के वाक़यात, फोड़े की जगह रख दें तो फोड़ा सही होने के वाक़यात, किताबों में तरह तरह के वाक़यात मिलते हैं। माल में अगर रख दिया जाए तो इसको इंशाअल्लाह चोर नहीं चुरा सकेगा, किसी माल में इसका नक्श रख दिया जाए तो बड़ी बरकत है। एक बार मैं हवाई जहाज़ में था तो कोई साहब बैठे हुए थे, मैंने उनसे मतलब ऐसे ही कुछ राव रस्म अलग से की तो दावत इस्लामी का और तारुफ वगैरह, तो इन्होंने एक नक्शे नाले पाक जेब से निकाला और मुझे दिखाया। साइज उसकी इससे कम थी तो निकाला, बोला मैं हर वक्त ये साथ रखता हूँ। अब ये नहीं कहना ये कि मतलब तुम उसी की बात कर रहे हो, ये दावत इस्लामी वालों का एक अल्हम्दुलिल्लाह एक पहचान है कि दावत इस्लामी वाले नाले पाक से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो इनको भी किसी ने हो सकता है गिफ्ट किया हो, तो बोला मैं ये रखता हूँ। इसकी बरकत मैंने ये देखी है कि एक बार कोई ऐसा मौका आया कार चलाते हुए कि मेरी कार एक गहरे पानी में उतर गई और पूरी डूब गई और एकदम से ये उभर के बाहर आ गई और मैं निकल गया। और उस वक्त मेरी जेब में ये नक्शे नाले पाक था। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश मैं भी करता हूँ, ख्वाहिश होती है कि मेरे पास नाले पाक तशरीफ फरमा हो, जी चाहता है, कोशिश करता हूँ। ये गालिबन जश्न विलादत के मौके का नाले पाक है, इस्लाम ने मुझे तोहफे में दिया था। वो नई नई चीजें तब्दील करते हैं ना, ये नया नक्श मुझे दिया था। साईं अर्ज ये है कि अपना नालेन पाक मुझे अता कर दे। आप मतलब कब से दावत इस्लामी में आना जाना है? साईं मैं कासमाबाद में बनु हाशिम मस्जिद में जा रहा हूँ तब से, ये रमज़ान शरीफ से रमज़ान में भी बैठा हूँ। अच्छा जी सही, पूरा महीना 10 दिन? नहीं 10 दिन। हाँ वहाँ तो 10 दिन वाला होगा। कासिमाबाद मुझे पता है, और सिंधी इस्लामी भाइयों का और एरिया मखसूस, वहाँ गया हूँ मैं कासिमाबाद में। जी जी, और अभी यहाँ भी आज भी फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे आपके दीदार के लिए, आपकी सोहबत हासिल करने के लिए। दाढ़ी की और तबीयत- माशाल्लाह यहाँ पे आके मुझे बहुत सुकून मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा दाढ़ी रखने की नीयत जी कर ली है, इत्तिकाफ से की है? जी हाँ सर, इंशाल्लाह रखेंगे। यानी एक मुट्ठी पूरी रखने की नीयत है? जी हाँ, है या अब से है? आज से आज इंशाल्लाह। से। तो मदनी काफिले की कोई तरकीब हो जाए, कोई तारीख डेट दे दें, 12 माह का सफ़र या 25 माह का सफ़र, इंशाल्लाह करेंगे। कब करेंगे? ये कितना करेंगे? तो मैंने शायद ये बहुत बड़ा सौदा कर लिया। फिलहाल स्टार्ट 3 दिन, 1 माह का अगर हो जाए तो 1 महीने का, 1 माह का इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह जाएंगे, है तरकीब बन जाएगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह अल करीम। सुभान अल्लाह। बनो सलमान मदनी के हाथों से, मुबारक हाथों से। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, तो फिर तहे के ताजदार पहन के कारकर्दगी मुझे कौन देगा कि 1 माह के लिए सफर कर लिया इन्होंने? मुझे भिजवाएंगे ना इंशाअल्लाह उल करीम, इंशाअल्लाह। साईं नालो अच्छा है, साईं मोहम्मद इब्राहिम। साईं मोहम्मद इब्राहिम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साईं तमाम घणी खुशी थी तव्हां सां मिली करे, तमाम घणी। माशाअल्लाह। हाँ तव्हां जो पूरे महीने जे सफ़र जो मूंखे ॿुधाईंदा न इस्लाम भाई,
इंशाअल्लाह मुझे ॾाढी ख़ुशी थींदी, मूंखे बि इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कुछ हमारे इस्लामी भाई जब आपस में गुफ्तगू फरमाते हैं, आवाम में जब गुफ्तगू फरमाते हैं तो आप जनाब से गुफ्तगू करते हैं, और जब आपस में जब गुफ्तगू करते हैं तो अबे तबे से गुफ्तगू करते हैं। तो उनकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि भाई 72 नेक अमाल के मुताबिक आप जनाब से गुफ्तगू किया करें, तो उस पर कोशिश नहीं कर पाते हैं, उस तरफ आ नहीं पाते हैं। तो इनको किस तरह से अर्ज़ किया जाए? अब ये जो अबे तबे ये वो लोग करते होंगे आपस में, जो ज़ाती दोस्तियाँ बना लेते हैं ना, ज़ाती दोस्तियाँ ग्रुप, दावत इस्लामी काम इतना नहीं कर पाते। वो दावत इस्लामी में आते हैं जाते हैं, इमामा भी बांधेंगे, दाढ़ी भी रख लेंगे, लेकिन दीनी काम कि दीनी काम में जो मसरूफ़ नहीं होंगे तो अब कोई तो काम होना चाहिए ना, फिर वो अबे तबे आपस में लगे रहेंगे। और कोई नया इस्लाम आएगा तो वो आप जनाब और ये सब मतलब करेंगे। इसलिए हम लोगों को ज़ाती दोस्तियों के बजाय दीनी दोस्तियाँ हो आशिकान रसूल के साथ, वो भी मतलब यानी कि आदमी अपने आप को रिज़र्व रखे, संजीदा रखे, ऐसा फ्री ना हो जाए कि मतलब अखलाक के दायरे टूटते रहें। इंशाअल्लाह इस तरह कोशिश करेंगे आप तो अल्लाह करेगा तो आपकी मतलब यानी कि आदतें निकलेंगी। देखो इन्होंने माशाअल्लाह गुफ्तगू के आदाब किताब पढ़ी और दूसरी बार शुरू कर रहे हैं, तो किसी प्यारी प्यारी बातें की इन्होंने, तो आप भी ये किताब भी पढ़ें तो इंशाअल्लाह आपको मतलब यानी कि गुफ्तगू का ढंग मालूम होगा, किस तरह बातचीत करनी है, क्या क्या करना है, फिर फजूल बातों से बचना है वगैरह वगैरह। इंशाअल्लाह बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों मदनी फूल इसमें आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल अर्ज़ है कि एक हदीस पाक सुनते हैं ख्वाब के हवाले से, तर्जुमा इस तरीके से है कि सच्चा ख्वाब नबूवत के हिस्सों में से 46वां हिस्सा है। तो अब सवाल अर्ज़ ये है कि ये शुरू का जो लफ्ज़ है सच्चा ख्वाब, अब हम कैसे तयन करेंगे कि कौन सा ख्वाब सच्चा है? तो फिर कहा जाएगा कि ये ख्वाब जो है वो नबूवत के हिस्सों में से 46वां हिस्सा है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ख्वाब नबूवत का 46वां है। इसकी शरह मिरातुल मनाजी में हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस तरह, रोया ए स्वालिहा, यानी अच्छे ख्वाब से मुराद सच्चे ख्वाब हैं जो न शैतानी वसवसे से हों न दिल के ख्यालात से, बल्कि ख़ास खुदा रहमान की तरफ से हो। जिस कदर तकवा आला इस कदर ख्वाबें सच्ची होती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि दौरे हाजिर में जो फितने उठ रहे हैं साहबा किराम और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के लिए, उन फितनों से कैसे बचा जाए, इसके बारे में रहनुमाई अता फरमा दें। जज़ाकल्लाह। सारे फितनों का हल एक ही है, दावत इस्लामी के साथ मजबूती के साथ वाबस्ता रहें, कहीं इधर उधर ना जाएं। एक दरगीर व महकम गिर, एक दरवाज़ा पकड़ और मजबूती के साथ पकड़, इंशाअल्लाह कोई फितना आपको नड़ेगा नहीं, यानी कि वो मुखिल नहीं होगा आपके काम में। हाँ, आप खुद इससे भी दोस्ती रखेंगे, थोड़ा उसका भी टेस्ट लेंगे, थोड़ा ज़रा सुनते हैं इसका बयान, मैं हूँ तो पक्का ज़रा सुनता हूँ, पता नहीं क्या बोलता है, देखो ऐसा करेंगे तो फिर हम आपको ढूंढ नहीं पाएंगे। दावत इस्लामी जिंदाबाद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरी अहले सुन्नत आपसे मेरा सवाल ये है कि आज से पहले 1 साल पहले मेरे पास कुछ रकम थी और कुछ कारोबार भी था मेरा, लेकिन वक्त जैसे गुजरता गया कारोबार भी ख़त्म हो गया और जो रकम थी वो भी ख़त्म होगी, और उसके अलावा कर्ज़ भी ऊपर से चढ़ गया, और उसके बाद मेरा दीन की तरफ रजू हो गया। अब दीन की तरफ रजू हो गया, दीन भी सीख रहा हूँ, लेकिन कर्ज़ बहुत ज़्यादा कि उतारने की अभी हिम्मत नहीं, इतना कर्ज़ नहीं उतार सकता, लेकिन शौक़ भी है दीन सीखने का। और आप इसमें से बता दें कि इसमें क्या इसका हल है, क्या करना चाहिए इसमें, और आपसे गुजारिश है कि आप अपना पहला मुबारक मुझे दे दें। तो अपना पहला मुबारक पैगाम प्याला जी। सुभान अल्लाह।
प्याला तो शायद चला गया। अल्लाह पाक आपका मसला हल फरमा दे, कर्जा भी उतर जाए, और जो कुछ आप दीन सीखना चाहते हैं इसमें भी कामयाबी मिले। अभी एक हिम्मत रखें और नीयत साफ रखें कि मैंने कर्जा अदा करना है। अल्लाह करीम असबाब पैदा करने वाला है, तो इसके लिए दीन सीखने में तो कोई रुकावट नहीं है। मकरूज है तो क्या वो नमाज नहीं पढ़ेगा? इज्तिमा में सुन्नतों पर नहीं आ सकेगा, या मदनी काफिले का मुसाफिर नहीं बन सकता? ये ना तो चाहिए सारा कर। जो आप दीन का काम करना चाहते हैं, दीन की खिदमत करना चाहते हैं, वो भी करते रहें, और कर्जे के लिए भी कोशिश करते रहें कि अल्लाह कोई गैब से असबाब फरमा दे, कर्जा उतर जाए। मायूस ना हो। अगर दीन का काम नहीं भी करेंगे तो कोई थोड़ी कर्जा उतर जाएगा, वो तो अपनी जगह पर तो रहेगा और अदा करना होगा। अल्लाह चाहे तो कोई दीन के काम की बरकत से हो सकता है एक ऐसा झटका लग जाए कि सारे कर्ज उतर जाए। अल्लाह आपकी मुश्किल आसान फरमाए। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। उमूमन आवाम के अंदर ये मशहूर है कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है उसी पर कुर्बानी वाजिब है। जो साहिब निसाब है, साल पूरा हो गया, उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो गई, उसी पर कुर्बानी वाजिब है। और देखा ये जाता है उमूमन कि अगरचे साहिब निसाब नहीं है, लेकिन हाजत असलिया के अलावा उमूमन घर में कपड़े, बर्तन, सामान होता है, जिसकी वजह से कुर्बानी जो है वाजिब हो जाती है कि उसका माल जो है वो इतना हो जाता है कि निसाब से ऊपर हो जाता है। और आवाम में मशहूर ये है कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है उसी पर कुर्बानी वाजिब है, वही कुर्बानी करेगा। तो अगर इसके हवाले से कोई ऐसी रहनुमाई हो जाए, अभी कुछ वक्त है कि कुर्बानी के हवाले से इसके वसाइल भी करने हैं, इसके अखराजात भी मुकम्मल करने हैं, तो अगर अभी से कोई ऐसी शरई रहनुमाई मिल जाए और लोगों में ये क्लिप बनकर चल जाए कि ये जो गलत फहमी है कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है उसी पर कुर्बानी वाजिब है, ये गलत फहमी दूर हो जाए और एक तादाद जो है जो कुर्बानी करने से महरूम हो जाती है वो कुर्बानी करने में कामयाब हो जाए। 10 तारीख की सुबह सादिक से लेकर 12 तारीख के गुरूब आफ्ताब के दरमियान अगर वो साहिब निसाब होता है ना, और वो जो भी इसकी निसाब है वो कर्जा वगैरह और निकाल कर भी वो साहिब निसाब रहता है, तो इस सूरत में शराइत पाए जाने की सूरत में कुर्बानी इस पर फ़र्ज़ होगी। साल गुजरना इसमें शर्त नहीं है कि ज़कात फ़र्ज़ हो तभी कुर्बानी फ़र्ज़ हो। अगर वो इस तरह का माल है इसके पास और निसाब की कदर पहुंच गया, निसाब जैसे 52.5 तोले चांदी या इसकी रकम के मुताबिक ये हो गया, सुबह से 10 तारीख के सुबह सादिक से 12 ज़ुल्हिज्जा तीसरी ईद जिसको हम बोलते हैं, वो उसके गुरूब आफ्ताब से पहले पहले अगर वो मालिक निसाब हो गया है, शराइत पाए जा रहे हैं, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब शराइत पाए जा रहे हैं, अब जैसे कि बहार है, यानी कि मुसाफिर है सफ़र में और वो भले साहिब निसाब है, लेकिन ये कि सफ़र में कुर्बानी उस पर मुसाफिर पर, जो शरीर मुसाफिर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सरसब्ज़ इस गुलजार के